dear student. This is Saubhagya from NIT Rourkela. Dear student, today we'll discuss exercise 9H from Elements of Mathematics book. Okay, so who are in class 12 and from CHSE board, they can refer this video for their board exam. Okay, in the lecture number 11, we completed type 1, type 2 and type 3 integral. Based on that concept, this exercise is designed, that is exercise 9H. We will discuss question number 1, beta. Before that, students who are new in my channel, okay, just share it and subscribe the channel first and share with all your friends, okay, who are in CHSE Odisha board. Our first question beta kon achi? It kon achi? Anybody who can say this is in which format? This is type 1, alright? It type 1 la achi ki nahi? Kahi na type 1 la amar kon thae design ka kon thila? Numerator re 1 thibo au denominator re kon sin किबा cos term थिबो आ सेमानकर पावर 1 थिबो आ ता सहित किछि कांस्टेंट प्लस किबा माइनस फॉर्म रे रहि पारे. ओके, सो एटी सेमति अछि 4 अछि कांस्टेंट टर्म, 5 अछि 5 मल्टीप्लाई हिच का सहित cos x सहित. सो एटा टाइप 1 ला अछि. टाइप 1 ला हमर रूल कोन थिला? आई होप everybody has gone through the part 1 video. हमें dx बदल करके सब्स्टिट्यूट करथले 2 dt upon 1 plus t square डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिवा 4 को कांस्टेंट रहला 5 into एटा केते पडिबो 1 minus t square by 1 plus t square. getting everyone? so जो माने भूली जाय छ मैं लिखि दोछि जस्ट खाली रेफर करो. केते हम थिला dx is equal to 2 dt by 1 plus t square cos x कौन थिला 1. ये स्टूडेंट हमें जो टाइप 1 ले कौन सब्स्टिट्यूट करंती जे भूली जाय देखो dx रो वैल्यू हम केते पुट करंती 2 dt by 1 plus t square. ओके, sin x को केते पुट करंती 2d by 1 plus t square. cos x को केते पुट करंती 1 minus t square by 1 plus t square. Yes or no? बुझियो कि नहीं? बुझियो. So then कौन करिबा 2 dt by 1 plus t square cancel हेबो. ठीक अछि. तापर कौन हो 4 into 1 plus t square whole into 5 whole into 1 minus t square. Numerator and denominator रे कोनटा कैंसिल होइबो. everyone other 1 plus t square cancel होइबो. so then कोन टर्म हम पाखरे रहला 2 dt by एटी केता आसबो 4 plus 4 t square plus 5 minus 5 t square. and this going to be solve करले 2 constant बाहर पळेबो 2 constant बाहर पळेबो. then dt of 1 सटी केते रहइबो 4 plus 5 9 minus t square. this will be dt of 1 0 square minus 0 square. which is better standard form का dx by a square minus x square कहते 1 by 2 है ln a plus x by a minus x plus c. मुझे लगने से जो स्टैंडर्ड फार्मूला है पढ़ियो. सो अप्लाई a is equal to 3 here. a रो वैल्यू केते एटा 3 अछि. बुझियो छी. सो एटा जस्ट फार्मूला अप्लाई करबी आंसर. सो लिख दियो 2 into 1 by 2 है. a रो वैल्यू केते बेटा a रो वैल्यू 3 ln how much 3 plus t by 3 minus t plus c. Okay, so this is going to be 1 by 3 2 to cancel 1 by 3 ln 3 plus and the value of t is, everyone remember, value of t is equal to how much?
tan x by 2 टाइप 1 इंटीग्रल है जमा भूली जीवनी जे t रो वैल्यू tan x by 2 सो एठी हम पुट कर दो t रो वैल्यू tan x by 2 3 minus tan x by 2 plus so this is our integral okay so एठी तीनटा जिंस मन रखबार अछि dx is equal to 2 dt by 1 plus t square sin x is equal to 2t by 1 plus t square और cos x का वैल्यू बेटा है 1 minus t square by 1 plus t square ए तीनटा जिंस मन रखबार सहित t is equal to tan x by 2 चारटा जिंस मन रखी देन फटाफट सब्स्टिट्यूट कर दो देन स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़े ओके सो एवरीवन राइट डाउन फर्स्ट स्टूडेंट हम पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड बिट और थर्ड बिट था that we have discussed in lecture number 11 part 1 exactly same question जो exercise रो अछि हम सॉल्व करते थी सेटाबले that's why I am not solving right now then हमें जंप कर जिबा क्वेश्चन नंबर 4th bit को ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 and IV bit okay एटी क्वेश्चन बेटा कोन अछि क्वेश्चन अछि कि dx by 1 plus 2 sin x कोन अछि dx by 1 plus 2 sin x so direct जो dx एटा पुट करबा sin x जो अछि ता पुट करबा and don't forget that t is equal to tan x by 2 then हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2x बराबर के पुट करबा 2 dt by 1 plus t square divided by 1 plus 2 whole into sin x बदल है 2t by 1 plus t square and this is going to be देखो 1 plus t square 1 plus t square LCM नला पर कैंसिल है देन हम पाकर कोन रोजी 2 dt by 1 plus t square plus 4t getting or not एटा आसी टर्म 2 कांस्टेंट बाहर बने जिबा देन dt by एकु परफेक्ट स्क्वायर रे कन्वर्ट करिगा t plus 2 रो होल स्क्वायर 2 काइन आला t रो कोएफिशिएंट जा अछि 4 अछि 4 by 2 t then plus 1 एठी एक्स्ट्रा केते ऐड करले 2 रो स्क्वायर 4 फेडी दबा मुझे लगने सो नेक्स्ट एटा केते हे होची 2 बार अछि dt by t plus 2 रो होल स्क्वायर एटा केते 3 आसीबो 3 को लिखबी माइनस √3 रो स्क्वायर मुझे लगने एठी एक्चुअली हमने आउटपुट पे सब्स्टिट्यूशन ना t plus 2 is equal to u sometimes जने जो माने जानि पार तो डायरेक्टली लिख पारिबो नो प्रॉब्लम बट लेट अस मेंशन दैट स्टेप आल्सो put t plus 2 is equal to u then dt will be how much du so this integral converted into कते इज इंटीग्रल का इंटीग्रल का कोन हिजबो 2 द कांस्टेंट बाहर अछि देन dt कहते हैं इसको du by u square minus √3 square getting this is our standard formula बुझियो कि नहीं बुझियो छिला नेक्स्ट कौन करिबा 2 into 1 by so this one u don't forget this one u 2 into 2a एटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला कोन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a रो वैल्यू √3 1 by 2a 2 √3 ln कहते हैं जो बेटा u minus √3 by u plus √3 plus c ओके 2 2 कैंसिल हो गला 2 2 कैंसिल हो जीवो नेक्स्ट टर्म पाकर कैसे रहइबो ln सॉरी 1 by √3 1 by √3 ln u बदल कैसे पुट करिया t plus 2 minus √3 by t plus 2 plus √3 plus c and the value of t is don't forget tan x by 2 all right so कहते हैं इसको 1 by √3 ln t बदल कैसे पुट करिया बेटा t बदल रे tan x by 2 put here tan x by 2 plus 2 minus √3 divided by tan x by 2 plus 2 plus √3 plus c okay
So this will be our answer. Observing everyone. So this will be our answer. Someone may write directly from this to this step instead of substituting. ठीक अछि तो जदि जानि पारछो डायरेक्ट आंसर लिखि पारो जदि प्रॉब्लम होछि त सब्स्टिट्यूट करतो बुझिला कि नै पिला माने so everyone write it down first then we will solve our next question the student हम पर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि जोटा कि 5th bit question number 1 ठीक अछि so that is based on concept part 1 of rational trigonometry function ठीक अछि बेसिक वेरी सिंपल हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिया का करिया ना dx को पुट करिया 2 dt upon 1 plus t dx को करके पुट करिया 2 dt upon 1 plus t square तो sin x बदल के पुट करिया sin x बदल से लिखा है 2t by 1 plus t square plus 3 cos x बदल देते 1 minus t square by 1 plus t square okay so everyone simplify this one 2 dt by एठी 1 plus t square LCM एठी भी आसीबो ऊपर भी आसीबो कटि जिवो सो केते रहबो हम पाखरे रिमेनिंग टर्म 40 plus 3 minus 3t square बुझे लेते नेक्स्ट कोन हबो नेक्स्ट कोन है जो बेटा 2 कॉमन नहीं बा तळो 3 कॉमन नहीं बा एठे 2 कॉमन पड़ेला एठे 3 ने लेके ते जो 40 by 3 plus 1 minus t square then 2 by 3 constant 2 by 3 constant तो बाहर अछि एटा को हमें परफेक्ट स्क्वायर को कन्वर्ट करबा जेतोले माइनस t स्क्वायर थिबो कोन हमना आगे कांस्टेंट टर्म आसीबो देन माइनस हम कोन करबा कि माइनस अछि कोन करबा t एठी t रो कोएफिशिएंट केते 4 by 3 by 2 गले 2 by 3 कोन करबा minus 2 by 3 रो स्क्वायर करदले कोन हो तो minus 2 ए टर्म एठी माइनस अछि प्लस 40 by 3 अछि ठीक अछि एक्स्ट्रा एठी केते माइनस गले 2 रो स्क्वायर by 3 रो स्क्वायर सेटा ऐड करिया that is 1 plus 4 by 9 ऐड करिया एटा सॉल्व कर दियो देखो एठी आसी बुझियो एठी 4 by 9 एठी के माइनस 4 by 9 कटि दियो माइनस t स्क्वायर रहला एटा 4t by 3 1 तो दिया नेक्स्ट कोन होबो नेक्स्ट रे कोन होबो एटा को सॉल्व करियो एटा को सिंपलीफाई करो 2 by 3 बाहर रहला dt by एटा कोन हो 13 by 9 which can be written as root 13 by 9 3 the whole square minus t minus 2 by 3 the whole square मुझे लिखने नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड फॉर्म का सी स्टैंडर्ड फॉर्म का सी कौन आसीबो नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को कौन आसीबो देखो एठी एटा कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करियो एतो है 1 by 2 है a रो वैल्यू कते रूट 13 by 3 एटा कोन a रो वैल्यू बडी काम ठीक अछि देन 2 2 कटियो 3 3 कटियो log कोन है a प्लस वेरिएबल रूट 13 by 3 प्लस t minus 2 by 3 by root 13 by 3 minus एटा माइनस करेगा सो कोन है माइनस ब्रैकेट माइनस t plus 2 by 3 बुझो अदरवाइज कीप माइनस हियर या फिर ब्रैकेट ओपन करिए रख दियो नेक्स्ट स्टेप पे ब्रैकेट ओपन करिए प्लस c एटू सॉल्व करो पूरा ठीक से एटा तो सब कैंसिल है 1 by root 13 रहियो getting everyone next कोन होबो log LCM केते 3 जीवा बुझियो सो केते इसको root 13 plus 3t एटा 3 रहले -2 by root 13 minus केते इसको
3t एटी माइनस 2 थिबो प्लस 2 प्लस सो आंसर एटा इजो बट t रो वैल्यू केते 10x/2 पुट करियो t रो वैल्यू केते 10 एटी रूट 13 रहइबो ln root 13 plus 3 you keep minus 2 here plus 3 10x/2 divided by keep root 13 plus 2 minus 3 10x/2 plus 3 okay so this will be our answer of question number 1 bit fifth bit okay so everyone write down पिला माने हमें लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करिवा क्वेश्चन नंबर 1 पर ठीक अछि देन वी विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ओके अबे कोन देखो पिला माने तो टाइप 1 ले आसी ठीक अछि सो कम करिवा तो सब पहले पुट कर दो इजी ना सब सीखी वाले फटाफट सॉल्व करे पुट 2 dt काय वैल्यू dh रो वैल्यू by 1 plus t square divided by कौन इनको 1 को 1 रहेगा नेक्स्ट cos x बराबर 1 minus t square by 1 plus t square plus sin x बराबर 2t by 1 plus t square सब एलसीएम ले जाओ ठीक से एलसीएम नहीं गला पर देखो एटी 1 plus t square एटी भी 1 plus t square कैंसिल हो जाइबो देन कोन हम पाकर रहइबो 2dt by एत रहइबो 1 plus t square एटा एट मल्टीप्लाई हो नेक्स्ट कोन plus 1 minus t square plus 2t plus minus कैंसिल हो जाइबो देन हम पाकर कोन रहइबो 2dt by 1 plus 1 2 plus 2t 2 कॉमन नहीं गले 2 2 कैंसिल हो जाइबो दिस विल बी dt by 1 plus t जे लाइट कहते हैं वो 2 to 1 plus t यार इंटीग्रेशन एनीबॉडी who can say very simple is that to यार डेरिवेटिव 1 न्यूमरेटर अछि so ln denominator so कहते हैं वो ln denominator that is 1 plus t plus c and the value of t is 10x/2 this is also very important don't forget that one then put t is equal to 10x/2 कहते हैं इसको 1 plus 10x/2 plus c so this will be our answer everyone write down this one was very easy so write it now हमें अब कौन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेगा ओके so everyone write read the question from your elements of mathematics book here the question is 3 sin x plus 28 cos x by 5 sin x plus 6 cos x Bujal anybody who can say this is coming under type 3 integral alright and this is nothing but a special case also because there is no constant term in numerator as well as denominator बुझियो छी कि नहीं जेहेतु constant term is absent in numerator as well as denominator then what we have to do is that we have to write numerator is equal to numerator that is 3 sin x plus 28 cos x is equal to a into denominator that is 5 sin x plus 6 cos x plus b into यार डेरिवेटिव 5 cos x minus 6 sin x okay so what we have to do now comparing the coefficient of sin x comparing the coefficient of sin x left side रे कितना आसीबो 3 right रे कितना आसीबो 5a plus minus 6b 5a minus 6b बुझियला एटी sin x अछि लेफ्ट रे कोएफिशिएंट 3 राइट रे टू द sin x तार कोएफिशिएंट 5 है एटी sin x तार कोएफिशिएंट -6 देन cos x रो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेफ्ट रे cos x रो कोएफिशिएंट 28
राइट रे केते अछि एठी उठे cos x एठी उठे सो 6a plus 5b equation a equation b बुझेला कि नहीं सो देन कोन करिवा इक्वेशन a b को सॉल्व करिवा इट इज -6b एटी 5b अछि कोन करिवा एटी 5 मल्टीप्लाई करदो एटी 6 मल्टीप्लाई करदो केते मिलिबा हमको 5 मल्टीप्लाई करले एटी 25a minus 30b is equal to 50 next एटी 6 मल्टीप्लाई करा 6 मल्टीप्लाई करा 28 रे 6 कला केते होबा जोडी 28 रे 6 मल्टीप्लाई करा केते होबा 168 सेटा राइट रे होबो एटी केते मल्टीप्लाई करा 6 मल्टीप्लाई करा 36a plus 30b ऐड कर दियो दिगा को ऐड कले केता सेठी केता 61 प्लस माइनस कैंसिल है जो 61 है राइट रे केता बैठी एटी तो केता रहला 1 मिनट 168 plus 15 केता हला 13 हला then 6 into 1 7 into 1 8 183 so a will be how much 183 by 61 that will be 3 a ର value 3 है गला then b ର value केता होबो 8 देखो b ର value केता होबो 6b is equal to एटा टू लेफ्ट को आसीबो 5a minus 3 5a minus 3 and value of a is 3 minus 3 केते है अछि 12 so b is equal to 2 b ର value 2 आसले a ର value 3 आसले so ए जो इंटीग्रेशन let's say this value is I, okay, but the value of I will be how much? कितना is the value of I? देखो समझते हमें जो न्यूमरेटर को लिखिबा कितना लिखिबा a into a ର value कितना 3 into 5 sin x plus 6 cos x plus b b ର value कितना 2 into 5 cos x minus 6 sin x divided by how much 5 sin x plus 6 cos x dx बुझेला अति कैसे होगी नहीं this by this plus this by this individually divide करला individually divide करले हमारा आंसर कितना आछो बेटा 1 मिनट सो कहते हैं this by this cancel है 3 constant बाहर पड़ेगो 3 dx plus constant 2 अछि बाहर पड़ेगो कते इटा अछि 5 cos x minus 6 sin x divided by इटा कोन अछि 5 cos x 5 sin x plus 6 cos x dx okay here integration anybody how much x we know 3 into x plus देखो एटी कोन अछि 5 sin x plus 6 cos x यार डेरिवेटिव करते 5 cos x minus 6 sin x सो ए जो फंक्शन अछि डिनोमिनेटर रे तार डेरिवेटिव न्यूमरेटर रे प्रेजेंट अछि सो ln डिनोमिनेटर so its integration will be ln denominator that is 5 sin x plus 6 cos x plus c okay so this is our final answer this will be our answer beta क्वेश्चन नंबर 2 रो फर्स्ट बीट रो आंसर एटा है लाने समस्त नोट कर दियो फटाफट लाने हमें क्वेश्चन नंबर 2 रो सेकंड बीट स्टार्ट कर एवरीवन ऑब्जर्व द पैटर्न हियर इट कोन अछि एनीबॉडी हु कैन से टेबल करे कोठी एटी देखो डिनोमिनेटर नो कांस्टेंट न्यूमरेटर सपोज ए 3 न थांदा देन एटा स्पेशल केस को पळे थांदा टाइप 3 रो स्पेशल केस बट मु कहि छी जति कांस्टेंट न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर आसी गला प्रॉब्लम
बुझुछि कि नहीं सो सति भाई कोन एठी जो कांस्टेंट आसिला ता पय हम कोन इक्वेट करियो मेनली न्यूमरेटर आसिले बेसी प्रॉब्लम जे डिनोमिनेटर कांस्टेंट था से कांस्टेंट का भी सटी कांस्टेंट इक्वेट करियो पड़ता न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर जो भी आसो सो कांस्टेंट टर्म आसीबो हम सॉल्व ठीक अछि देन सो एटा स्पेशल केस रे आसुनी हमको क्लॉज सी लिखियो देखो now write numerator that is 12 sin c minus 2 cos x plus 3 is equal to a into denominator that is sin x plus cos x plus b into derivative of denominator that is cos x minus sin x plus c मुझे लगे मुझे लगला नेक्स्ट कौन है जो कि हमें कोएफिशिएंट कंपेयर करके a b 0 वैल्यू फाइंड आउट करना sin x रो कोएफिशिएंट कंपेयर करो केते आसी लेफ्ट रे 12 राइट रे केते आसी देखो एठी उठे sin x टर्म अछि एठी उठे sin x माइनस b इक्वेशन a दे दियो नेक्स्ट cos x रो कोएफिशिएंट कंपेयर करो लेफ्ट रे केते आसी cos x माइनस 2 राइट रे केते आसी एठी उठे cos x एठी उठे cos x a प्लस b इक्वेशन b दे दियो एटा को ऐड कर दियो लेफ्ट रे केते 5 आसला सॉरी 10 राइट रे प्लस माइनस b कैंसिल हो गला 2 है सो a इज इक्वल टू केते 5 वैल्यू ऑफ b केते हो बेटा वैल्यू ऑफ b केते हो एठी b रो वैल्यू केते b इज इक्वल टू a minus 12 that is b is equal to 5 minus 12 this is going to be b is equal to minus 7 बुझला b रो वैल्यू minus 7 आसला a रो वैल्यू 5 ओके सो नेक्स्ट कौन करबा एठी देखो बेटा एठी कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो लेफ्ट रे कांस्टेंट टर्म केते लेफ्ट रे कांस्टेंट टर्म रो कोएफिशिएंट 3 राइट रे कांस्टेंट टर्म को भी अछि ओनली c अछि एंड एठी तो किछ कांस्टेंट नहीं सो डायरेक्ट c इज इक्वल टू 3 आसे बुझला a रो वैल्यू 5 b रो वैल्यू -7 c रो वैल्यू 3 so this integral will be, let's say this integral is equal to I, so value of I will be how much देखो बेटा समझते न्यूमरेटर को अधिक लिखवा a by eta कर देले only a रो इंटीग्रेशन that is a रो वैल्यू कितने 5 dx डायरेक्ट लिखुची so that you can understand it okay so next का कौन है जीवा 1 minute b रो वैल्यू कितने -7 so -7 आउटसाइड को पड़ेगा न्यूमरेटर रे कितने रहइबो दिस cos x minus sin x by sin x plus cos x dx plus c रो वैल्यू कितने 3 whole into dx by sin x plus cos x ओके देन ए का जो वासी वाला ए इंटीग्रल है लेट्स से यार वैल्यू I1 एटा कोऑर्डिनेट राशि टाइप 1 ए जो इंटीग्रल है टाइप 1 ले आसो दैट इज dx बदला हम पुट करिया प्रीवियसली जेंति सॉल्व करथले 2 dt by 1 plus t square sin x केते इज 2t by 1 plus t square cos x केते हो 1 minus t square by 1 plus t square ओके सो नेक्स्ट कौन है बेटा नेक्स्ट देखो एटा केते इज 5x -7 एटी देखो यार डेरिवेटिव न्यूमरेटर अछि सो ln डिनोमिनेटर दैट इज sin x plus cos x plus 3 बाहर पळेला देखो यार इंटीग्रेशन सॉल्व करिबी बा I1 लो वैल्यू काढी ठीक अछि सो लेट मी सॉल्व हियर एटी हमको 3 into ए जो I1 लो वैल्यू पुट करिया ओके I1 लो वैल्यू पुट करिया देन हमें I1 कोड कैलकुलेट करिया जेतु स्पेस 8 अल्प टिके अछि तो एटी कैलकुलेट कर दोछि I1 लो ठीक अछि I1 देखो केमि हबो dx बदल केते पुट करिया 2 dt by 1 plus t square divided by sin x बदल रे 2t by 1 plus t square cos x बदल रे 1 minus t square by 1 plus t square एको सॉल्व करले कोन हिजबो 2 dt by 1 by
एटी 1 प्लस टी स्क्वायर एटी भी 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम नेले कैंसिल हेइबो देन टर्म गुडा कोन रहइबो 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर एटी कैसे नै गेटिंग एवरीवन सो एटा कोन हेइबो 2 बाहर पळेले dt बाय एटा तो 1 थला माइनस देखो माइनस t माइनस 1 लो स्क्वायर एटा लिखियो t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर है माइनस हो तो मल्टीप्लाई माइनस 2 भी है माइनस प्लस 2 एक्स्ट्रा माइनस को लेके 1 सो एटी आउट पे 1 ऐड करियो देखो एटी जो 1 थला 1 आउट पे 1 ऐड कर दे सो यार वैल्यू कोन है जीवो dt बाय 2 तो बाहर अछि तो √2 रो स्क्वायर माइनस t माइनस 1 रो होल स्क्वायर बुझला सो यार वैल्यू कहते हैं 2 बाय इनटू 1/2 है यार वैल्यू √2 ln √2 प्लस t माइनस 1 बाय √2 माइनस t प्लस 1 प्लस c अब t रो वैल्यू कहते हैं 10x/2 सो एट वैल्यू पुट ओवर t 2 कटियला सो कहता है 1/3 ए जो वैल्यू टा केते आसीबो i1 लो वैल्यू हम पुट करिया कोठी एठी पुट करिया ठीक अछि i1 लो वैल्यू एठी पुट करिया i1 लो वैल्यू केते आसीला i1 लो वैल्यू केते आसीला 1/√3 ln देखो समझते ए जो वैल्यू टा फाइनल आंसर पुट करिया ln √2 - 1 प्लस t √2 - 1 प्लस t t रो वैल्यू करते हैं 10x/2 बाय √2 प्लस 1 माइनस t t बदल देते हैं 10x/2 प्लस c ओके सो दिस विल बी आवर आंसर बट यू गॉट 83 আছে √3 আছে सो कटी की कहते हैं 80 ओनली √3 सो फाइनल आंसर कहते हैं इसको फास्ट ए जो दुईटा टर्म बनती लको प्लस √3 into 8 टर्म डबल लिखियो प्लस बुझला सो दिस विल बी आवर आंसर एवरीवन राइट इट फास्ट द स्टूडेंट हम पाखरे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 5 sin x dx by 3 - 2 sin x देखो समझते आइदर किसी मल्टीप्लाई करके मींस 3 - 2 ए जो टर्म रा ऊपर आने की प्लस सम कांस्टेंट लिखियो बट हमें टाइप 3 इंटीग्रल ले जिबा एटी कांस्टेंट टर्म अछि sin x अछि जेमिति हमें न्यूमरेटर को लेखंती a into denominator plus b into derivative of denominator 3 to 0 minus 2 plus x plus c कोएफिशिएंट कंपेयर करके हमें कौन करिवा कोएफिशिएंट कंपेयर करके a b रो वैल्यू फाइंड आउट करिवा sin x रो कोएफिशिएंट कंपेयर करके लेफ्ट रे 5 आसीबो राइट रे केते आसीबो देखो ए टू का sin x अछि -2 है सो a वैल्यू इज इक्वल टू -5 है a वैल्यू आसीबा देन देखो cos x लेफ्ट रे 9 सो लेफ्ट रे केते 0 राइट रे केते अछि -2b सो b इज इक्वल टू 0 अब कांस्टेंट टर्म रे को नेक्स्ट ड्रॉ आसीबो कांस्टेंट टर्म दा देखो एटी समझते लेफ्ट रे अछि किछि 0 9 राइट रे कोन एटी उठे 3a कांस्टेंट प्लस c 3a प्लस c सो c रो वैल्यू केते हो -3a that is -3 into -5/2 that is 15/2 c रो वैल्यू केते आसीला 15/2 let's say this integral is I we don't know how much it is हमें फाइंड आउट करिबा ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट कोन हबो देखो समझते this is जो 5 sin x बदल लिखबा a -5/2 into a 3 plus 15/2 I will be how much a वैल्यू कहते हैं -5/2 into 3 - 2 sin x
plus c ର value କେତେ 15/2 divided by how much 3 minus 2 sin x dx. This going to be minus 5/2 एटा by एटा केते हिजो एटा by एटा dx हिजो plus 15/2 dx by 3 minus 2 sin x এই जो इंटीग्रलটা এটা टाइप 1 ले आसीगला बुझला এটা टाइप 1 ले आसीगला यार वैल्यू केते -5/2 plus 15/2 into let's say i1 यार वैल्यू माने करो i1 हो सो i1 रो वैल्यू काढी के इक्वेशन 1 ले पुट कर दो हमरा आंसर पड़े आसी ठीक अछि नेक्स्ट अतिक जगह हम सॉल्व करिया कार वैल्यू i1 रो वैल्यू जला बेटा देन एटी पुट करियो i1 केते अछि सॉल्व करो देखो dx by केते अछि 3 minus 2 sin x एटा कोन एनीबॉडी एटा टाइप 1 को पड़े आसी सो सब वैल्यू पुट कर दियो dx बदल केते 2 dt by 1 plus t square 3 minus 2 whole into 2t by 1 plus t square नेक्स्ट कोन हो 2 dt by 1 plus t square कोन 1 plus t square जो कोन एलसीएम ऊपर जो तळे जो कैंसिल हे जो आ कोन टर्म रहइबो एटा एटी मल्टीप्लाई जो 3 plus 3t square minus 4t 3 कॉमन नै दिबा नै गला हमको केते मिलबो dt by एटी 3 कॉमन नै ले t square plus 1 minus 40/3 so 2/3 dt by एटा परफेक्ट स्क्वायर रे कन्वर्ट करबा t रो कोएफिशिएंट केते -4/3 सो कम करा हो एनीबॉडी केते करा हो बेटा कम करा हो यार बाय 2 कर दो -2/3 रो स्क्वायर ऐड कले स्क्वायर केते 4/9 माइनस करबा बुझे लाइक नहीं ऐड केते कले 4/9 ऐड कले अब फेडी दवा सो यार वैल्यू केते जो 2/3 dt by t minus 2 3 रो होल स्क्वायर एटा केते केता आसीबो 5/9 that means √5/3 रो होल स्क्वायर getting so यार आंसर केते tan इनवर्स फॉर्मूला 2/3 into tan इनवर्स 1/√5/3 3 cancel tan inverse kete is for this by this 3t minus 2 by 3 by kete √5/3 plus c so 3 कटि गला अब केते हमको मिलि 2/√5 tan inverse 3t minus 2 by √5 plus c बुझला अब t रो वैल्यू बेटा केते फर्स्ट इंटीग्रल है t रो वैल्यू केते tan x/2 सो यार आंसर है कि कुछ आंसर है केते जो फाइनल यार वैल्यू देखो एटी 15/2 अछि देखो एटी समस्त देखो मो टोटल यार वैल्यू लिख देबी 15/2 i1 रो वैल्यू मल्टीप्लाई करी लिख देबी ओके 15/2 into 2/√5 tan inverse 3t 3 tan x/2 minus 2/√5 plus c एटा देखो कटि गले 2 कटिला एटी कटला केते हला आ 3√5 रहइबो काना 15 टा 3 into 5 आ 5 टा √5 into √5 गोटे √5 कैंसिल हे जिवो सो ए जो मल्टीप्लाई है ये 15/2 मल्टीप्लाई है ये इसका से सो फाइनल आंसर हम लिखि 5/2 प्लस केता होबा सकी 3√5 tan inverse 3 tan x/2
by 2 minus 2 by root 5 plus c. So this one is our last step, our final answer. Everyone write it fast, then we'll solve the last bit of question number 2. Just make one correction here, everyone. If dx integration karte x, so put x here, and in the final answer there will be x here. Okay, so this is our final answer. Now we will start our last bit, that is IV of question number 2. पिलामाने हमर एठी क्वेश्चन कोन अछि बेटा 2 cos x plus 7 by 4 minus sin x dx. Okay, so एटा टाइप 3 रे अछि. Getting everyone? अछि कि नहीं? So जणे एमती करबा this by this, यार डेरिवेटिव एठी अछि plus 7 by 3. तो 7 by 4 minus sin x का टाइप 1 को पळे इसको. Otherwise सेमती कंफ्यूजन होछि. हमें डायरेक्ट जेमती न्यूमरेटर को लिखंदी 2 cos x plus 7 is equal to a into constant term अछि ना, so not special case. जेमती as usual method a into denominator plus b into derivative of denominator plus another constant c. So 4 minus sin x denominator plus b into your derivative minus cos x plus c. Okay, देखो first sin x रो कोएफिशिएंट देखो 9 किछि लेफ्ट sin x 9 0, राइट रे केते अछि माइनस है, सो a is equal to 0 काहे ना एटी sin x अछि, एटी sin x 9, सो एयर वैल्यू 0 होगा. देन cos x रो वैल्यू कंपेयर करो, लेफ्ट रे केते cos x 2, राइट रे केते माइनस b, सो b रो वैल्यू केते आसेला 2 minus 2, sorry minus 2. Then constant term कंपेयर करो, लेफ्ट रे केते अछि 7, राइट रे constant term कोठी बेटा अछि देख दियो. लेफ्ट रे 7 ठीक अछि कि नहीं, राइट रे कोठी हला एठी उठा आसीबो केते आछि 4 रे, बट a ର वैल्यू तो 0 प्लस c, a तो जेहेतु 0, सो c is equal to 7. So सब constant पढ़ी आसिला. Let's say this one is I. Getting? अतः I रो वैल्यू केते हिबो? न्यूमरेटर को लिखिबा a रो तो 0 हो गला, b रो वैल्यू केते -2 into minus cos x बुझियोची plus 7 by 4 minus sin x dx. So individually divide करगा, this by this plus 7 by this, so this will be -2 minus cos x dx by, देखो समझते 1/4 minus sin x एतिके लिखो plus 7 dx by 4 minus sin x. बुझे लग नहीं? So 8 का तो टाइप 1 राशि वाला, टाइप 1 t1 means टाइप 1 राशि वाला. तो फर्स्ट यार देखो, यार डेरिवेटिव न्यूमरेटर अछि, ए फंक्शन द डेरिवेटिव न्यूमरेटर अछि, व्हाट वी कैन राइट ln denominator, getting? So -2 ln denominator, that is 4 minus sin x, plus let's say this integral is I, पूरा का I1, so हमें I1 इक्वेशन 1 दे देबा. देन एटी आंसर I1 नो वैल्यू सॉल्व करिकि देखियो, एटी वैल्यू सॉल्व करिबा. ठीक अछि पिला माने I1 हमर केते आसला 7 into dx by 4 minus sin x. Then 7 बाहर रहिला, dx बदल केते पुट करिबा 2 dt by 1 plus t square divided by 4 minus sin x बदल रे 2t by 1 plus t square. एकु सॉल्व करले 1 plus t square न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हेइबो, 2 dt by how much, एटा क्रॉस मल्टीप्लाई होबो
4t square plus 4 minus 2t. Getting everyone? Then if we come derivative you can say next come हमें 780 अच्छी 7 अच्छी थी अब एटू 4 कॉमन नहीं दिबा so 14/4 आसला dt by कहते हैं t square plus 2 minus t by 2 then एटू परफेक्ट स्क्वायर को कन्वर्ट करिबा देखो केता हो बोला माने bt by एटा कंडे t एटी t रो कोएफिशिएंट कते एटा तो ऑलवेज t है जो तो t स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है t रो कोएफिशिएंट कते 1/2 केता बेटा 1/2 अगेन 2 डिवाइड करबा केते इको 1/4 सो -1/4 रो स्क्वायर प्लस 2 थिला एक्स्ट्रा केते t ऐड करले 1/16 फेडी दवा 1/16 ठीक अछि कि नहीं एठी देखो हमें कहते हैं कॉमन नेले 4 नेले सो हियर rectify that one here will be 1 here will be 1 next कहते हैं जीवो 14/4 dt by t minus half ro whole square sorry 4 ro whole square and it is 16 minus 1 15/16 लो 15/16 आसीबो सेटा लेट करबा √15/4 रो होल स्क्वायर ओके एबे यार डायरेक्ट आंसर लिखिबा 14 एटा कोन 10 इनवर्स फॉर्मूला 1/8 दैट इज √15/4 4 कटिला 10 इनवर्स 40 minus 1/4 by √15/4 plus c ओके 4 कटी वाला बुझे लगे नहीं 4 कटी वाला नेक्स्ट कौन करा ये थांदा 4 कटी वाला बेटा नेक्स्ट केता आसीबो 14/√15 10 इनवर्स t रो वैल्यू केते ए इंटीग्रेशन ले सबोले t रो वैल्यू t = 10 x/2 put here 4 10 x/2 minus 1/√15 plus c getting everyone so ए जो एटा का वैल्यू असला i1 ला वैल्यू सो हमको पुट करिया अछि इक्वेशन 1 ले सो इक्वेशन 1 ले पुट कर देला हमको डायरेक्ट आंसर पड़े अछि मुझे लगने क्लब में सो कहते हैं जो हमारा फाइनल आंसर 14/√15 10 inverse 4 10 x/2 minus 1/√15 plus c okay so this will be our answer everyone write it fast dear student today we discussed question number 1 and 2 from exercise 9s from elements of mathematics okay so who are in 12th class that is second year CHSC board so they go through this exercise properly because 1 4 mark yeah 1 6 mark question definitely will be asked from this exercise I hope you guys are enjoying the videos in my channel okay if the answer is yes then like it and share all the people around you and don't forget to subscribe my channel so thank you everyone for your valuable time Vande Mataram Jai Hind